नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, NARKB, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। Namaskar, sir. Namaskar. हैप्पी ओनम टू यू प्रदीप जी। Wish, yes, thank you very much, and wish all the people who celebrate Onam a happy Onam. I think and the whole may world Mahabali bring a lot of tremendous prosperity in their lives and their families. May Mahabali bless us all. May Yes, yes. Onam illuminate us all. May the light of Mahabali guide us all as to how we must be generous, how we must be on the right path. And even if God Himself stands before you, you must not abandon your path of righteousness. That's the lesson of Mahabali, and that's the lesson for the whole of India. So happy Onam to all of you. आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद, Jai Hind. सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, और चाइना में नी हाओ प्रदीप जी। Abariyago Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And konnichiwa in Japan. And as I said before, we'll try and get the proper greeting in Portuguese very, very soon. अब क्या है साहब के प्रदीप जी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब को क्या हो गया? वो बड़ी अजीब गरीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर। वो ट्रुथ सोशल, भाई जो आपको बता दूं, वो ट्विटर का कंपेरेटर है जो ट्रम्प फैमिली ने शुरू किया है, उसको ट्रुथ सोशल बोलते हैं। वहां पर वो बोलते हैं कि वी सीम टू हैव लॉस्ट रशिया एंड इंडिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। Now he is sounding like a jilted girlfriend. मतलब कोई गर्लफ्रेंड होती है ना, वो लड़की होती है, वो देखती है कि वो Now he believes, yes. किसी और के साथ जा रहा है कोई बंदा, मतलब वो फिर वो बोलती है देखो यार, अच्छा भाई ठीक है, फिर बोलती है भाई तुम्हें आई विश यू ऑल द बेस्ट, समथिंग लाइक दैट। क्या गया है? ही इज द फर्स्ट US president to behave this way. I mean, he's not even presidential. I've never seen a president behave in this manner. I mean, have you? I don't think so. Russia was very blunt. Putin was very blunt when he said, you can't treat India and China the way you are talking right now. You can't do it. Yeah. And they're not going to take it. And exactly what has happened. You can't. How can you treat India the way? The fourth largest economy. China, we've got nothing to do with what China has to do. But India is concerned, everybody's self-respect is attached to it. How can you just call Mr. Modi and say, yes, I'm selling you the F-35, buy it. Why should he buy it? Why should we buy it for what? F-35. If it doesn't suit us, we won't buy Yeah, it. we won't buy it. And then he says, Mr. Modi, you're in Canada, why don't you come to the White House? And then he expects Prime Minister Modi to immediately divert the Air India One and go and land there in Washington DC and meet the President Trump. And very well knows that Mr. Munir is there sitting there and he wants to take credit for the war. मतलब कि मोदी साहब वेले बैठे हैं, ट्रम्प के फोन का इंतजार कर रहे हैं कि भाई हम कब बुलाओगे तो मैं आता हूँ, दौड़ के आता हूँ तुम्हारा लंच खाने के लिए व्हाइट हाउस में। अरे यार क्या मतलब कैसा प्रेसिडेंट है यार ये, मतलब अजीबो गरीब। और अब जब सब बिगड़ा हुआ है तो बार बार फोन कर रहे कि आ जाओ। बट आई थिंक इट्स ऑलरेडी द वाटर हैज पास्ड थ्रू द and it is too late for any patch up. Though India is saying that our relationship with Russia and China doesn't disqualify our relationship with Trump. We may go on with Trump also. लेकिन प्रदीप जी एक चीज मैं बोलूंगा कि शुरू से भारत की एक रणनीति रही है, एक विदेश नीति शुरू से रही है भारत की कि सब लोग जो हैं, हम सब लोगों के साथ हैं। वी आर ऑल विद एवरीबॉडी। हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सीधी सादी बात है। तो एंड बाय द वे, इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर मिस्टर ट्रम्प इज सेइंग, लेट मी टेल एवरीबॉडी, लेट्स गो टू आवर गेस्ट, देन आई विल से दिस इन फ्रंट ऑफ देम। Can we go to our guest, please? This is really truly important. नमस्कार नमस्कार द्विवेदी जी, नमस्कार। जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव सर। अरे डॉक्टर ढोने साहब, आप पिछली बार आप गाड़ी में थे, आपका नेटवर्क खराब था। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार नेटवर्क अच्छा होगा। अकोला से डॉक्टर ढोने हमारे साथ और डॉक्टर अविरल मलिक, दो डॉक्टर हमारे साथ है सर। फैंटास्टिक। दो डॉक्टर और एक इंजीनियर जी। अविरल मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेट प्लेजर। अब क्या है कि हम लोग जी, हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। और कल आनंद चतुर्दशी भी है, कल विसर्जन है गणपति का, जाएंगे वापस वो अपनी माँ के घर। तो मुंबई के लिए बहुत सबसे बड़ा फेस्टिवल है हम लोगों का ये।
और तकरीबन 2-2.5 करोड़ लोग पहुंच जाते हैं मुंबई में इस वक्त, तो मतलब देखने वाला नज़ारा होता है। मैं आप सब लोगों को, खैर डॉक्टर ढोने तो यहीं से हैं, पता नहीं कितनी बार वो आ भी चुके होंगे आनंद चतुर्दशी के लिए, आप दोनों को मैं आमंत्रित करता हूँ, प्लीज़ आइए, बी आर गेस्ट। अगली बार गणपति के वक्त आप मुंबई में रहिए प्लीज़। तो मैं ये बोल रहा था कि जो ट्रम्प साहब ने आज ट्रुथ सोशल के ऊपर कहा है, बड़ा अजीबोगरीब मसला है। आई थिंक ही इज लॉस्ट इट। ऐसा प्रेसिडेंट मैंने कभी नहीं देखा अमेरिका का। हमारे भारत में शुरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे सब लोगों का सिर्फ एक ही मंत्र रहा है, हमारी सारी दुनिया से दोस्ती है साहब। हाँ, कोई हमारे साथ दुश्मनी करेगा, हम दुश्मनी कर लेंगे, ऐसी क्या बात है, लेकिन हमारी दोस्ती है। और दूसरी चीज है, इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर मिस्टर ट्रम्प हैज सेड, बाय द वे, HAL has just confirmed orders, हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स has just confirmed orders for the Tejas Mark 1 and Mark 2 engines. There are over 150 engines that we have just bought from GE, from General Electric, which is an American company. These are state-of-the-art, latest aircraft engines which have just been bought by us. तो वो दूसरा ट्रेड है, फर्स्ट क्लास चल रहा है सर। हमारी डिफेंस कोऑपरेशन जो है यूएसए के साथ बहुत बढ़िया चल रही है, आईटी कोऑपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चल रही है। ये जो टैरिफ वगैरह उन्होंने लगाए हैं, अब पता नहीं कितनी देर तक ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मुझे मालूम नहीं है। मेरा अपना गैस ये है कि बहुत ही जल्द ट्रम्प साहब विल बी फोर्स्ड टू विड्रॉ दीज टैरिफ्स। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई डोंट थिंक एनी कंट्री कैन अफोर्ड दिस। और भारत जैसे देश के साथ इस तरीके का बर्ताव अमेरिका के लिए घातक साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। अविरल मलिक साहब, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार ट्रम्प साहब चल रहे हैं और भारत ने सामने से एक बहुत ज़बरदस्त, मेरी समझ में, आई एम श्योर डॉक्टर ढोने एंड द्विवेदी साहब विल डिसएग्री विद मी, आई एम श्योर, वो दोनों मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, जो भारत अभी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। ट्रम्प साहब का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे, यूएसए के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे ये बोल रहे हैं कि भैया अगर आपको बातचीत करनी है हम लोग तैयार हैं, आप बोलिए क्या करना है। चाइना भी हमारा दोस्त है, रशिया भी हमारा दोस्त है, सब हमारे दोस्त हैं, और पाकिस्तान के साथ उस दिन दोस्ती हो जाएगी जिस दिन पाकिस्तान आतंकवादियों को या आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद कर देगा। ऐसा भारत का रवैया शुरू से रहा है। अब आप बोले डॉक्टर मलिक प्लीज। जी, जहां तक विषय अमेरिका का या किसी देश जहां तक विषय है, तो ये बिल्कुल हमारा स्पष्ट मानना है, भारत किसी के दबाने से, किसी के झुकाने से, किसी के डराने से ना डरने वाला है, ना दबने वाला है और ना झुकने वाला है। ये मैं समझता हूं बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये नया भारत है, मजबूत भारत है, आधुनिक भारत और अत्याधुनिक भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, विश्वगुरु भारत है, दुश्मन मुल्क को मुंहतोड़ जवाब देने वाला भारत है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ, मैं समझता हूँ सबने देखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये नया भारत है, 2014 के बाद का भारत है, मजबूत नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व है, अनुभवी नेतृत्व है, और स्पष्ट मानना है भारतीय जनता पार्टी का कि किसी भी रूप में भारत ना दबेगा, ना हटेगा, ना झुकेगा और किसी प्रकार का दबाव एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है मेक इन इंडिया वाला ये भारत है, तो मैं समझता हूँ सबको बिल्कुल स्पष्ट मालूम है। और ये युवाओं का भारत है, ये कृषि प्रधान भारत है और मजबूत इकोनॉमी वाला भारत है। मैं समझता हूँ किसी रूप में भारत किसी के सामने झुकेगा विश्व में कभी ना पॉसिबल होगा, ना होना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना। डॉक्टर अविरल मलिक जी, बात यह है कि कांग्रेस इज टेकिंग क्रेडिट फॉर जीएसटी। आप भले कितने भी बोले कि जीएसटी 2.0 एक जबरदस्त अचीवमेंट है। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन मोदी साहब दिवाली गिफ्ट नवरात्रि के पहले दिन देश को संबोधित करके दे दे जीएसटी रिफॉर्म्स। बट कांग्रेस का कहना है बार बार राहुल गांधी जी के चिल्लाने पर आप मजबूर हो गए, मजबूर होकर गब्बर सिंह टैक्स को आपने रिफॉर्म कर दिया। कांग्रेस इज टेकिंग द क्रेडिट ऑफ डॉक्टर मलिक। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है जीएसटी का, जीएसटी को एक गब्बर सिंह टैक्स कह के बुलाते हैं, जबकि वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो इतना इन्हें मैं समझता हूं कि एक तरीके से जानकारी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई इनकी इतनी होनी चाहिए कि उसकी फुल फॉर्म को ये सही से स्पेल आउट कर पाए और सही फुल फॉर्म बोल पाए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है राहुल गांधी जी का,
आदरणीय सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का, इंडिया अलायंस का, इस परिवारवादी अलायंस का। तो मैं स्पष्ट रूप से इस विषय पर कहना चाहूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के विषय पर माननीय मोदी जी ने, और जिस तरीके से उन्होंने वायदा किया था तोहफा देने का, उन्होंने स्पष्ट रूप से तोहफा दिया इस देश की जनता को। किस तरीके से महंगाई मुक्त भारत का निर्माण हो, बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण हो, रोजगार युक्त भारत का निर्माण हो, अच्छे और मजबूत भारत का निर्माण हो, गरीबी मुक्त भारत का निर्माण हो, और किस तरीके से किसानों को लाभ हो, किस तरीके से किसानों को स्पष्ट रूप से लाभ हुआ। मैं समझता हूं चाहे वो कृषि संयंत्रों की बात हो, ट्रैक्टर की बात हो, बड़े स्तर पर जिस तरीके से लाभ हुआ, जिस तरीके से लाभ इसमें होगा, वो स्पष्ट रूप से सबको एक तरीके से नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इंडिया अलायंस का, इंडिया अलायंस वालों की आदत है आरोप लगाने की, झूठ बोलने की, और एक झूठ को बार बार प्रचारित करने की, प्रसारित करने की। जब तक वो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक ना पहुंच जाए और 100 बार उसको बोलेंगे, जब तक वो झूठ सच में एक तरीके से कन्वर्ट ना हो जाए या सच ना लगने लगे, मैं समझता हूं। लेकिन जनता झूठ को वेरीफाई करने की बुद्धि, ताकत, सामर्थ्य मतदाता इस देश का रखता है। इस देश का मतदाता बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अवेयर है, पॉलिटिकली मैच्योर है, और वो जानता है कि किस तरीके से 2014 में जवाब दिया उसने, और 2019 में जवाब दिया, 2024 में जवाब दिया, और 2029 में भी एक तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने का वोट के माध्यम से काम करें। लेकिन अविरल मलिक साहब, बात एक है, यहाँ मौजूद है शिवसेना यूबीटी वाले जी। केवल मेरा एक छोटा सा सवाल और, बोलिए। एक छोटा सा सवाल है, आज शिवसेना यूबीटी के स्पोक्स पर्सन यहाँ है, तो ये बता दें, इनके नेता है संजय राउत जी। ये एक तरीके से जब वीर सावरकर जी का अपमान किया जाता है, उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर सकता, बहुत दुखद है जिस शब्द का प्रयोग राहुल गांधी जी करते हैं वीर सावरकर जी के संबंध में। तो आखिर इनका गठबंधन क्यों है, किस आधार पर है? ये कहते हैं कि इनके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत हैं संजय राउत हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, और दूसरी ओर ये कहते हैं कि इनका गठबंधन कांग्रेस के साथ है। तो आखिर किस आधार पर ये गठबंधन रखे हुए हैं? कम से कम महाराष्ट्र प्रदेश का प्रत्येक नागरिक आज देख रहा है, नेशन नाउ को ये स्पष्ट कर दे तो बढ़िया रहेगा। बल्कि देश भर के कोई स्पष्ट नहीं कर रहा है, ये बताए कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनके भीतर है, इस अलायंस के भीतर। क्या ये है कि भाई परिवार की जो बेरोजगारी है राजनीतिक रूप से, उसे एक तरीके से रोजगार में कन्वर्ट करना, एम्प्लॉयमेंट लेना है? क्या अपना पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, या जनता का हित और आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है? अविरल मलिक साहब, जो आपने वीर सावरकर, विनायक दामोदर वीर सावरकर जी, श्रद्धेय वीर सावरकर जी के बारे में जो कुछ भी पूछा, ये हम लोग पूछ के थक गए हैं। आज तक कभी इसका स्पष्ट जवाब नहीं आया है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, सिर्फ यही आता भाई वो उनकी विचारधारा है, ये हमारी विचारधारा है, और विचारधाराओं में कोई पार्टियों का विलय नहीं हुआ है। We have not merged with the Congress. Congress has not merged with us. तो हमारी हुआ है कि भाई ये अपना परिवार की राजनीतिक बेरोजगारी हटा ले और वो अपने परिवार की बेरोजगारी, लेकिन मैं कुछ और बोलने वाला हूं, बस इसलिए हुआ है सर। वो संजय द्विवेदी जी बात करेंगे, संसद चुन के चले जाए, जीत जाए, अपना बेरोजगारी हटाए, इसलिए हुआ है। लेकिन संजय द्विवेदी जी अभी थोड़ी देर के बाद मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। लेकिन मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी, ये जीएसटी हैज बीन वेलकम्ड बाय ऑल। आई एम श्योर डॉक्टर ढोने विल ऑल्सो एग्री विद मी कि जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हैं, दे वर लॉन्ग ओवरड्यू। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एंड बाय द वे, पीपल डोंट रिमेंबर दिस। जब जीएसटी लगने भी वाला था ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये सुनने वाली बात है। राहुल गांधी जी मुंबई आए थे महालक्ष्मी रेसकोर्स के ऊपर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। गलती से कांग्रेस वालों ने मुझको भी बुला लिया था, ज़्यादातर बुलाते नहीं, क्यों नहीं बुलाते मुझे मालूम नहीं है। आपके यहाँ के मुंबई के जो चरण सिंह सापरा उपरा जितने भी लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, एक ज़माने में हमारे बच्चे हुआ करते थे, वो ज़्यादातर बुलाते नहीं है मुझको। क्यों नहीं बुलाते मुझे मालूम नहीं है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे नो दैट राहुल गांधी यूज्ड टू कॉल मी अंकल, राजीव गांधी जी वाज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड माय होल फैमिली इज फ्रॉम द कांग्रेस। आई लीन टुवर्ड्स द बीजेपी, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। और ये मैं बहुत फ्रैंकली एडमिट कर रहा हूँ, सबके सामने एडमिट करता हूँ मैं। लेकिन इस शो में कभी ऐसा नहीं होगा, आप कभी ये नहीं पाएंगे डॉक्टर ढोने या संजय द्विवेदी कि हम लोगों ने किसी के साथ अनफेयरनेस प्रकट की हो। इस शो में नेशन नाउ के ऊपर, भले आप कांग्रेस से हो, भले आप कम्युनिस्ट से हो, वी हैव ऑलवेज सेड वी ओनली स्टैंड बाय द ट्रूथ। और हमेशा आप बोलिए, मैं राहुल गांधी जी की मैं आपके सामने बात बताना चाह रहा हूं। राहुल गांधी ने मेरे सवाल के ऊपर यह जवाब दिया था कि वी वुड लाइक जीएसटी टू बी, और ये बात है प्रदीप जी कब की, 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। जीएसटी जब जिस साल लागू हुआ है ना, उसी साल राहुल गांधी जी ने यह बात बहुत पहले कही थी कि वी वुड लाइक जीएसटी टू बी कैप्ड एट 18%, 18% के ऊपर नहीं होना चाहिए, तब की बात है।
और मिनिमम जो है इट इज राहुल गांधी बाय द वे हु सेड इट शुड बी 5%। तो अगर आज राहुल गांधी जी क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का कि ये 18% और 5% जो आपने किया है ये मेरे कहने पे किया है, बिल्कुल ठीक ले रहे हैं सर, गलत नहीं ले रहे। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। और इसके लिए तो डॉक्टर मलिक को बल्कि मुझको लगता है कि बहुत खुश होना चाहिए कि देखिए कैसी सरकार है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो सजेशन है हम लोग पूरी तरह मान रहे हैं। एनीवे वील कम टू दैट डॉक्टर ढोने, बट इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, राहुल गांधी वाज द फर्स्ट पर्सन टू से कि 17 या 18%, एक्चुअली ही डिडंट से 17%, ही सेड 18%, 18% के ऊपर नहीं होना चाहिए जीएसटी। ऑफ कोर्स जो आइटम्स हैं जैसे टोबैको हो गया, लिकर हो गया, इन सब के ऊपर आप 40% के आप 100% लगा दो, नोबडी केयर्स, लेट्स बी वेरी क्लियर। बट मेन सजेशन जो है 5% एंड 18%, दिस केम फ्रॉम राहुल गांधी। मैं सबके सामने बोल रहा हूं साहब, और जिसको मेरे साथ आर्ग्यू करना कर लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई स्टिल हैव दोज रिपोर्ट्स एंड आई स्टिल हैव दैट शो। डॉक्टर ढोने अब आप बताएं प्लीज। कि राहुल गांधी जी ने जो बातें बोली है वो सही हुई है। उन्होंने इसके पहले कोविड के वक्त भी कहा था कि ये बहुत बड़ा इसका नुकसान होने वाला है देश को और आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। जो भी बातें बोली थी उन्होंने, तो ये बहुत बड़ी महामारी आने वाली है ऐसा भी बोला था। तो उस वक्त ये जो हर्षवर्धन थे शायद इनके हेल्थ मिनिस्टर, तो उन्होंने बोले थे कि राहुल गांधी और उनकी फैमिली को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि WHO ने बोला था कि ऐसा कुछ शक्यता कम है, लेकिन राहुल गांधी ने बताया था कि ये होने वाला है, ये बहुत बड़ा इसका स्वरूप होने वाला है और इसमें देश में गरीबों का नुकसान होगा और देश की आर्थिक स्थिति इसमें खराब हो जाएंगी, ये राहुल जी ने बोला था। तो उसके ऊपर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने और ये नड्डा जी और ये हर्षवर्धन जो उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको डिसएग्री किया और राहुल गांधी को इस तरह से कि भाई ये गलत बोल रहे या अनपढ़ आदमी है, इस तरह का बताने की कोशिश किए थे। लेकिन बाद में राहुल गांधी ने जो बोला वही साबित हुआ। नोटबंदी के वक्त भी राहुल गांधी ने जो बोला था वही सही साबित हुआ। और अभी जीएसटी के बारे में आपने खुद बताया कि राहुल गांधी की जो डिमांड है ये सरकार ने पूरी की है। ये तो मेरे सामने की बात है सर, ये तो मैं फर्स्ट पर्सन से बोल रहा हूँ। राहुल गांधी वाज एब्सोल्युटली राइट, राहुल गांधी वाज एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने ये कहा था 18% के ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ बराबर, ये तो मेरे सामने की बात है। ये भी है। इसके अलावा आपको बताता हूँ कि जातीय जनगणना का मुद्दा आप सब देश देख रहा है कि राहुल गांधी का है। तो राहुल गांधी बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है, स्टडीड है और जनता के मुद्दे उठाते हैं और जनता की नब्ज उनको मालूम है। जितनी मोदी जी को मालूम है उतनी ही राहुल गांधी जी को मालूम है। मोदी जी को जनता की नब्ज मालूम है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको जनता से ज़्यादा उनके उद्योगपतियों मित्रों का साथ देना है, क्योंकि वही उनके टीवी चैनल खरीद लिए उन्होंने और वही उनको पैसा देते हैं इलेक्शन में, उनकी जो इमेज बनाने में वही लोग मदद करते हैं। और पूरा जो कैंपेन पूरे देश में और खरीद फरोख्त करने का है, विधायकों को खरीदना है, सत्ता परिवर्तन करना है, दूसरी पार्टियों को फोड़ना है, 50-50 करोड़ एक एमएलए को देना है, तो उसके लिए पैसे उनके जरूरी है। तो उनको गरीबों से ज़्यादा उनके उद्योगपति मित्रों की उनको ज़्यादा चिंता होती है। तो इसी वजह से, नहीं तो मोदी जी को भी जनता की नब्ज मालूम है, डॉक्टर धोले साहब नहीं मानते। लेकिन राहुल गांधी बहुत सीधे साधे व्यक्ति है, जो जनता की बात है वो हमेशा करते हैं। सर, बट आई टेल यू, आई वाज लुकिंग फॉर द डेट। दिस हैपेंड इन 2015। दिस वाज इन 2015, 2015 में जब जीएसटी की सिर्फ बातचीत हो रही थी, तब राहुल गांधी ने कहा था कि 18% के ऊपर मत लेके जाना, इसको 18% की लिमिट रखा। ये 2015-2016 की तो देखिए 10 साल अभी तो ये बोलते कि जीएसटी, ये बोलते राहुल गांधी को ये पता नहीं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। राहुल गांधी को सर वो भैया जीएसटी का सर आप पे व्यंग कस रहे थे। गब्बर सिंह टैक्स बोल दिया। गब्बर सिंह जो था लोगों को लूटने का गब्बर सिंह टैक्स, और गब्बर सिंह भी वैसा ही था मोदी जी के जैसा, कोई बच्चे नहीं थे, वो भी लुटता था। गब्बर सिंह और मोदी जी भी लुटे, दोनों नहीं थे, उसको भी परिवार नहीं था और मोदी जी को भी परिवार नहीं, फिर भी लुटते। उनके साथी भी जो थे वो भी वैसे थे आजाद भारत का, जिनका कोई परिवार नहीं था, लेकिन वो लुटते थे जनता को। आजाद भारत मोदी जी लूट रहे, दोनों साहब गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। आजाद भारत का सबसे बढ़िया निर्णय बीजेपी मोदी साहब का कहना है, आजाद भारत का सबसे ऐतिहासिक निर्णय मोदी साहब ने लिया, जीएसटी 2.0।
उनका कहना, मैं 2 मिनट कह रहे कि ये पंचरत्न मोदी साहब कह रहे हैं पंचरत्न, इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट और सेंटर का फेडरलिज्म वो एकदम जबरदस्त मजबूत किया है, गरीब खरीदेंगे, सेव भी करेंगे, आसान हो गया। बट उनका कहना है कि आप अभी बोल रहे गब्बर सिंह टैक्स वाले, कांग्रेस वाले, मगर मोदी साहब का कहना है आपने टूथपेस्ट को छोड़ा नहीं है। 21% टैक्स टूथपेस्ट पर, दवाई पर 21% टैक्स, और बच्चों का टॉफी, मोदी साहब खुद बोले बच्चों का टॉफी में भी 21% टैक्स करने वाले, अभी क्या बात करें। इस प्रकार से मोदी साहब ने कहा, डोने साहब। नहीं, ऐसा है सर, इन्होंने जो अभी राहुल गांधी ने जो बोला था कि मिनिमम 5% और मैक्सिमम 18%, तो वो अभी सरकार ने लागू किया, हम तो इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप 21% लगा के फिर बाद में बोलते 5% लेके आओ। मोदी साहब का वो कहना है आप छोटे छोटे बच्चों का चीजों में भी 21% जीएसटी लगाए थे आपने। भैया इन्होंने कहा, इन्होंने दूध पे, दही पे, सब पे लगाया था इन्होंने। अभी रिड्यूस हो गया ना सर, 5% पे आ गया ना। इन्होंने जीएसटी के माध्यम से जो पैसे कमाए सरकार के पास जमा हुए और अपने उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ कर दिए। तो आपका माफ नहीं किया सर। लेट मी क्लैरिफाई सर। राइट ऑफ सर राइट ऑफ बोलते हैं, वो बाद में वसूले नहीं जाते सर, राइट ऑफ करते हैं सर, माफ के जैसे रहता है। May I say something sir? It is below the line. अकाउंट्स में अभी भी आता है, इट इज बिलो द लाइन के उद्योगपतियों को इतना पैसा अभी देना है। हाँ, उसकी वसूली अभी नहीं कर रहे, लेकिन बाद में होगी, ये याद रखो। वो गया नहीं है, अकाउंट में है सर। जो 18,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, भाई 12,000 करोड़ नहीं, 18,000 है, सॉरी 1,80,000 करोड़, 15 लाख करोड़, 18,000 करोड़ नहीं, 15 लाख करोड़ सर। पूरा पैसा वसूल होगा, कहीं जाने वाला नहीं है। एक को पूरे तो मोदी भाग रहे देश से, कहाँ वसूलेंगे? जो भाग गया देश से वो कहाँ उनको वसूलेंगे? उसका तो कुछ भी नहीं। अरे ढोने साहब प्लीज क्लैरिफाई करिए ना। ये ज्यादातर फायदा पहुंचा है उन कॉर्पोरेट्स को जो अभी यहां हैं। बेसिक चीज ये, सर पूरी बात बताइए ना प्लीज। बेसिक चीज ये थी कि हमारे बड़े कॉर्पोरेट जो हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा आ गया था, अगर उस कर्जे की वो वसूली करने को जाएंगे तो काम कौन करेगा सर? सारे धंधे बंद हो जाएंगे। इसलिए सबको सहूलियत दी गई। बट ठीक है, इसको वील पुट बिलो द लाइन, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट देते रहिए, प्रिंसिपल वी विल कलेक्ट लेटर। सर अभी भी भले रिलायंस हो यानी मुकेश अंबानी हो, गौतम सिंह घानिया हो, रुइया हो, अडानी हो, सब इंटरेस्ट दे रहे हैं उस पर। राइट ऑफ कुछ नहीं हुआ है, याद रख लो। आई एम सेइंग दिस एंड यू कैन चैलेंज मी ऑन इट एंड आई कैन फाइट यू ऑन इट एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। आप बोले दोनों साहब, बट बात यह है कि जीएसटी का तारीफ जहां मोदी साहब को करना है, बोला कि आजाद भारत का ऐतिहासिक डिसीजन उन्होंने ले लिया, मगर आप उसमें भी क्रिटिसिज्म देख रहे हैं। पंचरत्न बोले सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इसमें सुधरेंगे। उन्होंने कहा कि लोग अब खरीदेंगे और सेविंग्स भी करेंगे बिकॉज दाम कम होने वाला है। और एसेंशियल आइटम्स में जो आप 21% टैक्स आप लगाते थे, मोदी साहब 5% लेके आए, फिर भी आप मोदी साहब को गलत बोल रहे थे साहब। सर अभी 28% तक इन्होंने वसूली की है और 28 के बाद अभी 18 पे लाए, जो 18 थे वो 12 पे लाए, जो 12 पे थे 5 पे लाए। तो इन्होंने तो पूरा 10 साल वसूली किए और उसके बाद अभी ये कर रहे। क्यों कर रहे हैं अभी? ये ऐतिहासिक है। क्यों ऐतिहासिक? इसलिए है सर क्योंकि अगर इस बार बिहार में इलेक्शन हार गए तो इनकी सरकार चली जाएगी केंद्र की। क्योंकि अगर बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी की सरकार चली गई तो आरजेडी के जो सांसद है वो हवा का रुख देखते हुए बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। देखिए इस इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार जी की पार्टी खत्म होने वाली है, तो जो उनके सांसद बचे हुए, एमएलए बचे हुए हैं, तो एक तो उनको दो पर्याय, एक तो कांग्रेस के साथ यानी आरजेडी के साथ आए या फिर भाजपा के साथ जाए। तो जब हवा का रुख देखेंगे कि आरजेडी की तरफ ये जेडीयू के जो लोग हैं, जेडीयू बोल रहा था मैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी, तो जेडीयू जो है, जेडीयू के लोगों के पास दो ही पर्याय रहेंगे कि उनको खुद का पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए एक तो भाजपा के साथ जाएंगे या फिर आरजेडी के साथ जाएंगे। जब उनको दिखेगा कि भाजपा खत्म हो गई, बिहार में उनको जनाधार नहीं रहा, तो पूरे आरजेडी के साथ आएंगे क्योंकि उनको दोबारा सांसद बनना है, दोबारा एमएलए बनना है। तो वो स्थिति में आरजेडी के, जेडीयू के जो लोग हैं उनको जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपने पार्टी में शामिल कर लेना, इस इलेक्शन के बाद वो नहीं होगा और इनकी सरकार गिरने के चांस है। इसीलिए वो सरकार
अगर बिहार की सरकार गई कि केंद्र की सरकार भी जा सकती है। तो इसीलिए डोले साहब पूरे क्या देश यही को वजह है कि खड़गे साहब ने अभी अभी कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर मोदी सरकार गिरने वाली है? बिल्कुल बराबर है। ऐसा खड़गे साहब ने कहा और सपकाल साहब ने भी यही कहा कि 6 महीने के अंदर मोदी सरकार गिरने वाली है। बिल्कुल बीजेपी बराबर। ने सामने से बोला है, भारतीय जनता पार्टी ने सामने से बोला है कि भाई सुबह सुबह सपने देखने की आदत कांग्रेस को है और 2014 से वो यही सपना देख रहे हैं कि मोदी जी आज गए कल गए, आज गए कल गए। अभी 11 साल के लिए तो विराजमान है सर। अभी तो बैसाखी पे है, बैसाखी पे है सर। सर आप कितनी बैसाखी पे थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार कितनी बैसाखियों पे थे? वो तो देख लीजिए ना। सर पहली ये बार जितने- चलिए नहीं सर। नहीं, हमने तो दावा ही नहीं किया था ना 400 सीटों का। हम तो सिर्फ सत्ता चाहते थे, 400 सीटों का दावा नहीं कर रहे थे। अब की बार मोदी सरकार, सर, अब की वो बार तो 400 हर एक पार, पार्टी ये करती तो है। दावा नहीं कर रहे थे ना हम। सर, हर एक हम पार्टी तो सिर्फ करती है। मेजोरिटी चाहते थे देश चलाने के लिए। जी दुरुस्त बात है। और महाराष्ट्र में भी आपने कहा था कि इस बार जो है एमवीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है स्वीप करेगी, ये आपने कहा था। और कितनी सीटें आपकी आ गई वो सामने देख लीजिए। उसके ऊपर आप वोट चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेट्स गो स्ट्रेट क्रॉस द्विवेदी साहब। द्विवेदी साहब ने अभी तक कोई बातचीत की नहीं है क्योंकि द्विवेदी साहब के पास अभी आए नहीं है। तो द्विवेदी साहब दो सवाल उठते हैं यहाँ पे। एक तो क्या जीएसटी के ऊपर जो कुछ हुआ उसका क्या आप स्वागत करेंगे सर? अब दही पे, दूध पे, बाकी सब चीजों पे जो 12% टैक्स लगता था 5% पे आ गया है। दवाइयों के ऊपर तकरीबन 0 हो गया है। और तो और छोड़िए, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पे भी 0% है सर टैक्सेस वक्त। द्विवेदी साहब आपको आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आवाज है। जय श्री राम। जय श्री राम। जरा कैमरे की तरफ देख लीजिए ना सर, मुझे ऐसा लगेगा आप मुझे को देख रहे हैं। हो सकता है कहीं और देख रहे हो आप, लेकिन इधर देखिए, इधर नीचे लिख रहे थे सर। तो दूसरी चीज जो सवाल अविरल मलिक साहब ने आपसे पूछा कि भैया जब राहुल गांधी जी वीर सावरकर जी के बारे में तारीफ के पुल बांधते हैं तो उस वक्त आपका क्या रवैया है, जरा वो भी बता दें। अब आप बोलें द्विवेदी जी, फ्लोर इज योर्स। सभी जो बोलना है बोलिए। हाँ बोलिए सर प्लीज। पंचरत्न कहा, अभी आपने कहा था, मोदी जी कह रहे हैं पंचरत्न हुआ है जीएसटी में, जो 220 जो है पंचरत्न है। तो जीएसटी लगाया किसने था सर? क्या मनमोहन सिंह ने लगाई थी जीएसटी? जीएसटी जो लगाई गई थी वो तो माननीय मोदी जी द्वारा लगाई गई थी ना। अगर मोदी जी ने जीएसटी लगाई थी, अपने निर्णय को पलट रहे हैं, तो इसमें ऐतिहासिक निर्णय कहाँ से हो गया सर? ये तो वही बात हुई साहब, 8 साल तक आपने गरीब और मध्यम वर्ग को आपने चूना लगाया। तो चूना लगाने के बाद आप कह रहे साहब ऐतिहासिक निर्णय, पंचरत्न हो गया ये साहब, हमने बहुत अच्छा निर्णय लिया। तो जो चूना आपने लगाया 8 साल तक, जीएसटी लागू होने के बाद वो पैसा क्या वापस कर रहे हैं आप? अब वो पैसा वापस कर दीजिए आप। ऐतिहासिक निर्णय आप ले रहे हैं, आपसे गलती हो गई थी। इस देश में जीएसटी लगा के 24%, 18% ऊपर, 12% पर 5% पे आ गए हैं। तो जो आपने जो जीएसटी लगाई, अगर अभी गलती थी, जिस तरह से जैसे अभी हमारे उन्होंने कृषि प्रधान वाला भारत है हमारा, अभी हम बीजेपी प्रवक्ता जी कह रहे थे, तो भैया 700 किसान बलिदान इसी देश में हुए जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उनके 3 बिल बाद वापस हुए। तो ये आप कैसे कहते कृषि प्रधान देश बीजेपी कहाँ मानती है, इंडिया गवर्नमेंट कहाँ मानती है? आप कह रहे वीर सावरकर के बारे में बात करिए। तो वीर सावरकर के बारे में हमने कोई भारतीय जनता कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम 2014 में थे, तब तो हम परिवारवाद में नहीं थे, तब तो हमारी नीतियां खराब नहीं थी। आज हम कांग्रेस साथ आ गए, वीर सावरकर की बात आप कर रहे हैं, भारत रत्न अभी तक क्यों नहीं दिया आपने? आप हिंदू सम्राट की बात करते हैं बाला साहब ठाकरे की, भारत रत्न क्यों नहीं दिया आपने? आपको अगर लगता है वीर सावरकर, मैं तो स्पष्ट एक बात कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ उस अंग्रेजों के शासन काल में जिन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, जिन लोगों ने बलिदान दिया, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। वो वीर सावरकर भी होता है, भगत सिंह भी है, चंद्रशेखर आजाद भी है, सभी, मैं सभी का नाम लेता हूँ। लेकिन आप अगर वीर सावरकर की बात करते हैं तो आप वीर सावरकर भारत रत्न क्यों नहीं दे पा रहे अभी तक? भाई अटल बिहारी भाई पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न देने के लिए आपने 2 सेकंड नहीं लगाए थे, आपने तुरंत जहां सरकार बनी आपने दे दिया। तो वीर सावरकर की बात को खत्म करने के लिए न कांग्रेस बुराई करे, न कोई जनता दल बुराई करे, न कोई दूसरी पार्टी बुराई करे। आप वीर सावरकर जी को आप भारत रत्न दे दीजिए, माननीय बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न दे दीजिए। हमने गठबंधन, जैसे आपने पीडीपी से गठबंधन किया था, जैसे आपने जेजेपी से गठबंधन किया था,
जैसे आपने नीतीश कुमार जी से गठबंधन किया, वो गठबंधन हम भी किए हुए हैं। आपने पूरी पार्टी तोड़ के, आप शरद पवार की पार्टी तोड़ के, जो अजीत दादा पवार जिनको आप चक्की भिजवा रहे थे, जो 70,000 करोड़ घोटालेबाज थे, जिनके लिए प्रधानमंत्री 3 दिन पहले कर रहे थे, आज वो मंत्री आपके यहाँ बने हुए हैं। तो नीतियां तो पहले आपको तय करनी है ना कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसा चाहिए आपको। जो भ्रष्टाचारी है वो आपके अंदर आ जाए तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा। दूसरी बात पे आइए, माताओं बहनों की शिवसेना यूबीटी के नेता हमेशा इज्जत करते हैं और पूरे देश को इज्जत करनी चाहिए। आज की डेट में जिस तरह से आप सोनिया गांधी के बारे में 2014 से, सोनिया गांधी कौन है? इंदिरा गांधी की बहू, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी, उनके बारे में जो आप कहते हैं, क्या ये इंसल्टिंग नहीं है? अगर किसी ने माननीय मोदी जी की माता जी के लिए कुछ कहा, मैं शर्मिंदा हूं, नहीं कहना चाहिए था, किसी कुछ नहीं, तो बिहार में आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? बिहार में आंदोलन होने की क्या जरूरत थी? गुजरात में आंदोलन नहीं हो सकता था? उत्तर प्रदेश में आंदोलन नहीं होना चाहिए था? मध्य प्रदेश में आंदोलन नहीं होना चाहिए था? कि मोदी जी की माता जी सिर्फ बिहार के लिए है क्या? यही चीजें जब आती हैं कि जब आप सोनिया गांधी की बदनामी करें, आप किसी को 50 करोड़ की जर्सी गाय कहें, मंगलसूत्र छिनवाने लगे आप, तब आपको बुरा नहीं लगता है। राहुल गांधी जी के लिए नेता है, आज भी आपके नेता लोग राहुल गांधी की संविधान के खिलाफ बातें करते हैं, संवैधानिक बातें नहीं करते हैं। द्विवेदी जी, प्रियंका गांधी बड़ेला जी आप कहते हैं, द्विवेदी जी, ये कहाँ सम्मान गया? ऐतिहासिक आजाद भारत का ऐतिहासिक इसलिए निर्णय है, मोदी जी कह रहे हैं, बिकॉज ये पंचरत्न जो आपने कहा, पंचरत्न, इसमें प्रो पुअर गवर्नेंस, गरीबों के लिए गवर्नेंस, गरीब के फायदा के लिए गवर्नेंस, मोदी साहब का कहना है। पहले आवास योजना, घर में शौचालय, हर घर पानी, वो तो हो गया था। आज कंज्यूमर सॉवरेनिटी, जो गरीब से गरीब तबके के लोग एकदम कम दाम में अपने चीजें खरीदेंगे, वो खुद सेविंग करेंगे और धंधा भी बढ़ाएंगे, बिकॉज खरीदेंगे ज्यादा। तो ये इतना जबरदस्त प्रो गवर्नेंस, प्रो पुअर गवर्नेंस, मोदी जी ने यह टर्म कर दिया, प्रो पुअर गवर्नेंस। बोलिए जी, 8 साल तक कैसे लोगों ने खरीदा? 8 साल तक जीएसटी लागू रही जी, तो लोगों ने कैसे खरीदा? अब 8 साल बाद आपको याद आ रही है कि नहीं, सब गरीबों को सुध ले लें, बिहार में चुनाव है। आप जहां तक बात कर रहे हैं, पानी दिया हमने, भवन दिए हमने, अरे तो प्रधानमंत्री आप किस लिए बनाए गए हैं? अगर जनता ने आपको 240 सांसद दिए हैं, तो आपको अगर जनता ने दिए हैं तो जनता के हित में काम करने के लिए बनाए गए ना आपको, कि आपको अडानी, अंबानी और दूसरे जो उद्योगपति उनके लिए काम करने के लिए बनाया गया। लेकिन आज आपकी नीतियां, आप पूरा 2014 से पहले जितने प्रधानमंत्री रहे हो, आप सबकी नीतियां देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, मैं इंदिरा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, जिनकी नीतियां आप उठा के देख लीजिए, उनकी हमेशा गरीबों मध्यम वर्गीय लोगों के लिए रहती थी। आज लेकिन द्विवेदी जी, अपनी ये तो बात हो गई, अब इसके ऊपर तो साहब आपने क्या किया कि जीएसटी में आपने हटा दिया, 5% 18% कर दी। लेकिन मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूँ ना, जो 8 साल तक जीएसटी लागू रही जी, जो लोगों ने सामान खरीदा, गरीबों ने, मध्यम वर्गीय सामान खरीदा, वो जीएसटी के रूप में उनको वापस हो रही नहीं हो रही? आप उनको वापस करिए। अब ज्यादा खरीदा जाएगा, वापस नहीं कर सकते सर। वो सड़कों में लग गया। मनमोहन सिंह ने थोड़ा तो अपने कहते सर, अगर मनमोहन सिंह ने द्विवेदी जी, आपसे एक सवाल है, आपके मुताबिक, आपके व्यक्तिगत विचार से आज तक शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, वीर सावरकर जी और बाला साहेब ठाकरे, इन तीनों को अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया आपके मुताबिक? द्विवेदी जी बताएं। देखिए, वीर सावरकर की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, अगर कांग्रेस वाले उनके लिए कह रहे हैं माफी उन्होंने मांगी है, तो ये प्रूव कर देना माफी नहीं मांगी। भाई इनको प्रूव करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। वो कह रहे साहब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी मांगी, ये प्रूव कर दे। अगर प्रूव नहीं करना चाह रहे भारत दे दे। हिंदू से सम्राट बाला साहब ठाकरे जो हम लोग शुरू से मांग रहे हैं
जब से उनके हुआ है तब से हम लोग मांग रहे हैं कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। भगत सिंह को भारत रत्न दीजिए, किसने मना किया? अब क्यों नहीं मिला? 2014 दिन की सरकार है, 11 साल दिन की सरकार है, क्यों नहीं मिला? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे सकते हैं ना, वो संजय द्विवेदी कहाँ दे सकते हैं? हाँ, सरकार अगर कांग्रेस होती तो मैं पूछता कांग्रेस के प्रवक्ता से कि साहब अभी तक आपने क्यों नहीं तो किया? पूछ लेते हैं सर, आपकी सरकार है तो पूछ लेते हैं अविरल मलिक साहब से। तो डॉक्टर मलिक साहब आप बताइए, आदरणीय सम्माननीय विनायक दामोदर वीर सावरकर जी को आज तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? चलिए बाकी सबकी आप बात छोड़ दीजिए, यहां तक के शहीद आजम भगत सिंह को भी नहीं दिया गया, राजगुरु और सुखदेव की तो बात ही छोड़ दीजिए, अशफाकुल्ला खान को भी छोड़ दीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल को भी छोड़ दीजिए। आप बताइए सर, वीर सावरकर को या बाला साहेब ठाकरे को अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया सर? ये तो बता दें डॉक्टर मलिक सर। जी नहीं, देखिए संजय द्विवेदी जी यहाँ मौजूद हैं। संजय द्विवेदी जी से मेरे 2-3 सवाल थे, मैंने सवाल किए भी, लेकिन उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। मेरा स्पष्ट एक तो सवाल था, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आखिर क्या है, किस आधार पे अलायंस कर लेते हैं? ये कहते हैं कि भाई आइडियोलॉजी अलग अलग है, होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर फर्क किससे पड़ता है? सर, भारत आप अलायंस किस लिए कर रहे हैं? अगर आपकी आइडियोलॉजी मेल नहीं खा रही है, एक मिनट में बात करना चाहता हूँ। कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर अलायंस किस लिए? नहीं सर, सुनिए सर, पार्षद हमारे बन जाए, अरमान भाई देखिए, यानी कि अपनी राजनीतिक बेरोजगारी को, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए केवल आप गठबंधन करते हैं। आपका विचारधारा से किसी रूप में कोई लेना नहीं है। ये बिल्कुल आपका पीडीपी महबूबा मुफ्ती से आपकी विचारधारा मिलती है क्या? आपकी महबूबा मुफ्ती से विचारधारा मिलती है? उनके साथ तो आपने बैठ के सरकार बनाई थी। देखिए मैं कांग्रेस पार्टी चला जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। वो विचारधारा की बात ना करिए, कांग्रेस पार्टी की तो बात है। नहीं, पीडीपी विचारधारा आपकी और पीडीपी की एक जैसी है क्या? 60 साल इनकी सत्ता रही, और आप लोग किस प्रकार से, कांग्रेस के लोग को मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग श्रद्धेय वीर सावरकर जी का अपमान करने वाले लोग हैं और हर चुनाव में भुगतते हैं। 2014 में भुगता, 2019 में भुगता, 2024 में भुगता, 29 में भुगतेंगे, और फिर आगे कांग्रेस मुक्त वीर सावरकर जी को भारत रत्न कब देंगे? क्यों नहीं दे रहे अभी तक? आप, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, भुगतने दीजिए ना। आप भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? क्या उसमें अड़चन क्या है? मैं तो वही आ रहा हूँ, मेरा सवाल ही मैंने उठाया। आप सवाल उठाने वाले से ही सवाल पूछ रहे हो, यानी कि जो आपको क्वेश्चन पेपर बांट रहा है, मैं तो आपसे सवाल पूछा था, मैं आपसे जवाब मांगा था। अब जो सवाल पूछ रहा है उससे सवाल उठाया जा रहा है कि भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हैं? सर अड़चन क्या है उसमें? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर मलिक ये बताएं अड़चन क्या है? वीर सावरकर साहब हमारे आदरणीय हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, और हम उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनके पच्चरों पर चलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे करती है। इस विषय को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय, अगर आप कहते हैं कि आप उनके मार्गदर्शन में चलते हैं और जो पार्टी अपमानित करने का काम करती है उससे आप अलायंस कर लेते हैं, उससे आप गठबंधन कर लेते हैं, ये आपकी विचारधारा है। आप विचारधारा के आधार पर ही चलते, और उसके बाद संजय द्विवेदी जी हंस रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत दुखद है। सर भारत रत्न कब दे रहे हैं? बहुत शर्मनाक है। सर भारत रत्न कब दे रहे हैं? शहीद आजम भगत सिंह जी का सर भारत रत्न कब दे रहे हैं सर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन्हें प्रेरणा स्रोत मानती है, अपनी विचारधारा को इनके आधार पर। डॉक्टर मलिक आप सवाल का जवाब तो दें सर। और उसके साथ साथ द्विवेदी से मेरा एक और छोटा सवाल रहेगा, सर आप अगर उत्तर तो दें। राहुल गांधी अपमानित करने का काम डॉक्टर मलिक करते हैं, सर राहुल गांधी को भूल जाइए, पहले आदमी होने चाहिए। मैं तो आपको, अरे भाई आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और सर भारत रत्न 11 साल से आपने नहीं दिया। इसका जो गठबंधन है इसे डंके एक चोट पे तोड़ दिया जाए। भैया जवाब पूछिए भाई। डॉक्टर मलिक भारत रत्न कब दे रहे हैं? आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने ज्ञान बांट रहे जबरदस्ती तोड़ा जाए। सर भारत रत्न कब दे रहे हैं? एक सेकंड प्रदीप जी, डॉक्टर मलिक, एक मिनट डॉक्टर ढोने। डॉक्टर मलिक, वीर सावरकर जी को भारत रत्न क्या अगले साल मिलेगा? 2 साल के बाद मिलेगा? 3 साल के बाद मिलेगा? उसमें अड़चन क्या है वो तो बता दें, अगर आपके पास जानकारी है तो। नहीं है तो पता कर लें और बता देना सर, ऐसी क्या बात है?
ये 3 नाम हैं। एक तो बिल्कुल, सरदार भगत सिंह, हमें मालूम है कांग्रेस ने सर 2-3 नामों की बात की। बिल्कुल सर, जानकारी ले लीजिए ना, ऐसी क्या बात है, उसमें जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं। सरदार भगत सिंह शहीद आजम, कांग्रेस ने उनको क्यों नहीं दिया वो सबको मालूम है। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर, इन तीनों को भारत रत्न देने की आप चेष्टा करें। मैं बोला भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोगों ने कहा है कि देना चाहिए, तो उसमें अड़चन क्या है? आप कुछ बोलना चाह रहे थे डॉक्टर मलिक, बोलिए। जी नहीं, बिल्कुल देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए और मिलेगा, इस पर कोई दुरा नहीं है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल जो है वो जस का तस बना हुआ है। 60 साल इनकी सरकार कांग्रेस वालों की रही और किस तरीके से अपमानित करने का इन्होंने काम किया। सवाल ये है जिसपे द्विवेदी जी हंसते हैं। द्विवेदी जी को हंसी आ रही है कि 60 साल आपके पास आता है, वोट चोरी वाली बात है आपके पास। सुनिए डॉक्टर अभिलाष मलिक, वोट चोर गद्दी छोड़, राहुल गांधी जी का जो कैंपेन है वोट अधिकार, डॉक्टर मलिक इसके बाद जरा हम लोग डॉक्टर धोने के पास आएंगे। डॉक्टर मलिक जी सुनिए ना 2 मिनट। क्या वोट चोर गद्दी छोड़ और 6 महीने के अंदर वो परिवार डॉक्टर मलिक सच्चे सपूत को दोनों साहब के पास सर, पहले मैं बात बोलिए। सर, ऐसा है कि जो वीर सावरकर जिनको बोलते हैं, विनायक दामोदर सावरकर जो है, ये कोई इनकी विचारधारा कोई आरएसएस से मिलती नहीं थी। ये आरएसएस के खिलाफ में थे। उसके जो चश्मदीद गवाह मेरे पास है, जो उनके साथ जिनको सजा हुई थी, डॉक्टर आप्टे जो ग्वालियर में रहते थे, आप्टे, सुनिए मेरी बात। नारायण आप्टे, हमारे गुरुजी उनके पास प्रैक्टिस करते थे, डॉक्टर आप्टे के पास। डॉक्टर नारायण आप्टे, 10 साल की सजा हुई थी। जी परचुरे सॉरी परचुरे, डॉक्टर परचुरे, उनको सजा हुई थी। वो ग्वालियर में रहते थे, तो उनको सजा काट के वो बाहर आए, फिर उन्होंने प्रैक्टिस किए। तो हमारे जो गुरु है उनके पास प्रैक्टिस करते थे, तो उन्होंने डॉक्टर परचुरे ने बताया कि इनके विचार क्या थे। सावरकर के जो विचार थे वो बोलते थे कि नागपुर वालों को ये नागपुर वाले चड्डी वाले। तो सावरकर जो थे वो कोई इनके विचार के आदमी नहीं थे। एक बात, अब इन्होंने सावरकर को क्यों पकड़ लिया? क्योंकि इनके पास आरएसएस के पास 1925 से लेके 1947 तक जो 22 साल का सफर रहा, ये 22 साल में इनके पास एक भी आदमी नहीं था क्रांतिकारक जिनको बोले ये हमारा क्रांतिकारक है और जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। उल्टा 1942 में इन्होंने चले जाओ मूवमेंट को विरोध किया था और ये अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। इनके पास एक सिंगल आदमी नहीं है क्रांतिकारक जो बता सके, इसीलिए वो इनको ले रहे हैं सावरकर जी को। सावरकर जी तो इनके खिलाफ में थे, इनकी विचारधारा से मिलते नहीं, तो हिंदू महासभा थी इनकी, ये इनके आदमी है नहीं, लेकिन इनके पास कोई नहीं है इसलिए ले रहे। एक बात। दूसरी बात, हम क्यों विरोध करते हैं? सावरकर जी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया था। सावरकर जो थे उन्होंने संभाजी महाराज का अपमान किया था। उनके किताब में उन्होंने लिया। इनके जो गोडवलकर जो है उन्होंने भी शिवाजी महाराज का अपमान किया, संभाजी महाराज का अपमान किया। इनके अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जो किया है। तो सावरकर जी के और उनके हमारे विचारों में मतभेद है, इसलिए हम उनको मानते नहीं। रही भाई शिवसेना की और कांग्रेस की जो विचारधारा, तो कुछ मुद्दों पे विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। पीडीपी के साथ बैठ के आपने सरकार चलाई, वही पीडीपी उस वक्त जो पाकिस्तानी दहशतवादियों के सपोर्ट की बात करती थी, उस वक्त इन्होंने सपोर्ट सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने। ये सत्ता के इतने लालची है कि इनको छोटा राज्य भी चाहिए। इनको एक आधा मेयर का, जो चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन था, वो भी इन्होंने चोरी से जिताया। ये सत्ता के लोभी लोग हैं। दाऊद इब्राहिम अगर सुनिए, दाऊद इब्राहिम अगर भारत में आएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनका सोशल मीडिया बताएगा कि दाऊद इब्राहिम अगर उस वक्त बॉम्ब स्फोट नहीं करता था तो पाकिस्तान का इस देश पे हमला कर देता था। तो दाऊद ने इस देश को बचाने का काम किया है, बचाने का काम। इस तरह की फैलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के इतने झूठे लोग हैं सर। ये बगवा आतंकवाद फेल हो गए। आपने ट्राई किया कि सैफरन टेररिज्म को हाईलाइट करे,
आप सर, फेल हो गए जब terrorism जब कोई है नहीं भैया। कोर्ट ने रूल कर दिया कि ये देयर इज नो सैफरन saffron terrorism टेररिज्म नहीं था ना, कोई नहीं है। एक मिनट रुकिए ना, ये एक सुनो, जब मनुवादी सवाल लोग तो हैं, सुनिए। इनकी सोच यही है। सैफरन टेररिज्म देखो, पे आप हार गए भारतीय जनता तो पार्टी, उसके बाद आप RSS कहने को लगे पहले कि से सावरकर शासन देश का सबसे बड़ा आतंकवाद है, सबसे बड़ा और पहला आतंकवाद सावरकर है। जब सैफरन टेररिज्म आपका नहीं चला धोने साहब, तो आप सावरकर जी पर पकड़ लिए, बोले ये सबसे बड़ा पहला आतंकवाद हिंदू गोडसे- आतंकवाद सावरकर है। तो ये कैसा गोडसे भी है। सावरकर गोडसे और सावरकर जिस प्रकार से आप अटैक करना शुरू कर दिया, तो क्या यह जरूरी है? सावरकर का त्याग, अमित शाह जब पार्लियामेंट का एक व्यक्ति को एक ही लाइफ में 2 लाइफ सेंटेंस मिलना, यह सावरकर है पूरे देश को। तो किस प्रकार से आप इसे कहते हो? सर, सावरकर जी के जो विचार है, उन्होंने बोले थे, सावरकर जी ने बोला था कि गाय जो है, गाय कोई माता नहीं और देवता तो बिल्कुल ही नहीं, वो एक उपयुक्त पशु है। ये आरएसएस को मान्य है, ये भारतीय जनता पार्टी को मान्य है। अस्पृश्यता की बात, वो अस्पृश्यता के खिलाफ में थे, वो छुआछूत के खिलाफ में थे। सावरकर जी के पूरे विचार खराब नहीं है, लेकिन सावरकर जी के जो ये विचार है अस्पृश्यता के बारे में, उन्होंने बोले थे अस्पृश्यता हिंदू धर्म पे लगा हुआ कलंक है। क्या मानते हैं आरएसएस वाले? उल्टा इनके गोडवलकर जी तो बोलते हैं कि मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहिए। और ये इनके जो विचार है, सावरकर जी के जो विचार है, वो अगर इन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए कि सावरकर जी के सभी विचार हमको मान्य है। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके सभी विचारों को मान्य करती है? बट आप भी तो पढ़ने खा रहे। दिग्विजय सिंह बोला कि हमने कभी बोला ही नहीं सैफरन टेररिज्म। इनके पास कोई क्रांतिकारक नहीं है, इसलिए ये इनको ले अपने साथ कि हमारा आदमी उनका आदमी नहीं था। वो दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया कि मैंने कभी नहीं कहा कि सैफरन टेररिज्म एग्जिस्ट, मैंने कभी सैफरन टेररिज्म के बारे, उन्होंने खुद बुक लॉन्च किया था। सुशील कुमार शिंदे भी, आप करीब हो सुशील कुमार शिंदे जी के, वो तो पहले कहा था कि सैफरन टेररिज्म। हमारे कुछ लोगों से गलती हो सकती है, हमारे नेताओं से गलती क्या? आप बैक ट्रैक कर रहे हो, आप बैक ट्रैक कर रहे हो कि हमने कहा ही नहीं। दहशतवादी, सर मेरी बात सुनिए। हाँ। कोई हिंदू कभी दहशतवादी हो सकता नहीं, और हिंदू धर्म में भी कभी दहशतवाद को कोई जगह नहीं है। ना हिंदू दहशतवादी है, ना हिंदू धर्म में कोई दहशतवाद को जगह है। हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी दुनिया के लोग भाई भाई है, ऐसे कुटुंबक है, ये मानने वाला उस धर्म को बदनाम करने का Let me read out from Savarkar. Sir, let me read out from Savarkar. अविरल मलिक साहब, सुनने वाली बात है, द्विवेदी जी आपके लिए भी सुनने वाली बात है, जो डॉक्टर ढोने बोल रहे हैं ना। दिस इज सावरकर्स बुक विमेन इन मनुस्मृति। लेट मी कोट, आई एम कोटिंग फ्रॉम द ओरिजिनल। The worst about the new constitution of Bharat, he is talking about the constitution of India. The worst about the new constitution of Bharat is that there is nothing Bharatiya about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and which from ancient times has become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Even today, the rules which are followed by crores of Hindus in their lives and practice are based on the Manusmriti. This is what Veer Savarkar has to say about the Indian Constitution, sir. So, Dr. Dhone, as far as Savarkar Sahab was concerned, he wanted Manusmriti or some parts of the Manusmriti to be included in the Constitution of India. नहीं सर, ये मैंने इनके बारे में सुना है, गोडवलकर जी के बारे में, कि गोडवलकर जी की ये सर इनकी किताब है, वीर सावरकर साहब की किताब है विमेन इन मनुस्मृति। और उसके अलावा सावरकर साहब ने एक और ऐसे लिखा था, 7 शैकल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म की 7 बेड़ियां। वो तो बहुत ही जबरदस्त है सर, पढ़ने लायक है वो तो। मुझे नहीं लगता कि मलिक साहब ने कभी पढ़ी होगी, या बीजेपी या आरएसएस के लोग उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि वीर सावरकर, लेट मी टेल यू, डॉक्टर अविरल मलिक वाज अ रेडिकल। उनके साथ इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद हिम, लेट मी टेल यू दिस। वो तो मतलब ऐसे थे कि किसी मुंह फट ऐसे हुआ करते थे, किसी के सामने कुछ भी बोल दिया करते थे। तो विच इज वाई वी रिस्पेक्ट हिम, बाय द वे, इन महाराष्ट्र ही इज रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, वीर सावरकर जी। और अभिनव भारत जो उन्होंने शुरू किया, जबरदस्त सर, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन मान लीजिए ढोने साहब, अगर वो मान लीजिए माफी नहीं मांगते, तो क्या हम आज वीर सावरकर की बात कर रहे होते? वो तो मर चुके होते बेचारे सेल्यूलर जेल में। जैसे हमारे ना जाने कितने पंजाब के लोग जो गदर पार्टी में थे,
ना जाने कितने लोग शहीद हो गए, उनकी कब्रें भी वहां पर हैं, कोई याद भी नहीं करता। इनफैक्ट अभी अभी जावेद अख्तर साहब हमारे शो में आए थे, हमें मालूम पड़ा कि उनके परचाचा जो हैं अंकल वो 1857 की गदर में इन्वॉल्व थे, और वो जो हैं उनका देहांत हो गया वहीं पे अंडमान में, कब्र भी उनकी वहीं है, उनका नाम भी कोई याद नहीं रखता। तो मेरा ये कहना, आज हम वीर सावरकर की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वीर सावरकर जी ने माफीनामा भेजा, उसमें गलत क्या है? दैट्स अ स्ट्रेटजी, प्रदीप जी। नहीं, उसके बाद उन्होंने कभी अंग्रेजों का विरोध भी नहीं किया, बिकॉज ही प्रॉमिस्ड, वो घर पे बैठ गए थे। हाँ, उन्होंने आजादी का आंदोलन छोड़ दिया था जी। दोनों साहब ये महाराष्ट्र पर आते हैं पॉलिटिक्स पे। देवेंद्र फडणवीस जी का सुपर सक्सेस जो जीआर निकाला, जरा मनोज जरांगे पाटिल पूरे फौज को लेके एक ही दिन में वापस चला गया। दोपहर को जीआर दिया, शाम को 9 बजे के अंदर पूरे मराठा समाज मुंबई खाली कर दिए और वापस चले गए। बीजेपी का कहना है इसको कहते हैं गवर्नेंस। किस प्रकार से उन्होंने, किस खूबी से उन्होंने इस चीज को सेटल कर दिया और विन विन सिचुएशन करके जरांगे पाटिल भी खुश, ओबीसी समाज भी खुश, और सरकार ने अपना जो है ना गवर्नेंस का एक ताकत दिखा दिया। दोनों साहब सर ऐसा है, गवर्नमेंट अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अभी तो सब ऐसा हो गया कि जजमेंट भी उनके फेवर में आने लग गए, जज भी उनके विचारधारों के। कोई सर ऐसा है कि कोई अगर जज है, सुप्रीम कोर्ट में जज है, या कोई बैरिस्टर है, या कोई इंजीनियर है, लेकिन उसकी जो विचारधारा रहती है वो जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज के हिसाब से आजकल विचारधारा बनती है। तो वही हिसाब से आज जज लोगों ने, अभी जज ने क्या बोला, निर्णय दिया कि मुंबई खाली होना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। सरकार को भी बोला और जरांगे पाटिल को भी बोला कि ये मुंबई में इतने दिन तक ऐसा नहीं चलेगा। जब कोर्ट का आदेश हुआ तो सबको उसका पालन करना पड़ेगा। इसीलिए जरांगे पाटिल ने भी सोचा कि सरकार ने अभी निर्णय लिया है, कुछ ऐसा है, तो उन्होंने बोले कि ठीक है कुछ मान लेते इस बात को, क्योंकि ज़्यादा उसको प्रेशर करके अभी वो बहुत माहौल खराब होता था। और जरांगे पाटिल हो या मराठा समाज हो, वो माहौल खराब करने के चक्कर में नहीं है। बट सक्सेसफुल दोनों सब जीआर है, सक्सेसफुल जीआर है, इससे बढ़िया जीआर कैसे? हर पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। मान्य किया क्यों? अगर नहीं मान्य करते थे तो लोगों में गुस्सा होता था, लोग वहां पे माहौल खराब करते थे, मुंबई में बहुत माहौल खराब हो जाता था। इसलिए जरांगे पाटिल भी होशियार आदमी है, उन्होंने भी सोचा कि अभी ठीक है मान लेते हैं, कुछ दिन देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, नहीं तो फिर से उन्होंने बोला है कि इसमें जो बदल के चांसेस रहते हैं, बदल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। बात ऐसी है, जो जीआर निकाला, जीआर में उन्होंने दिया है कि भाई आप उस गांव के है कि नहीं है, इसकी जानकारी मिलेगी। किसी ने अगर बोला कि हाँ इस गांव में पहले से है, तो वो एफिडेविट दे सकता है आदमी कि भाई हाँ इस गांव में रहते हैं पहले से। लेकिन जो उसको कास्ट सर्टिफिकेट की बात है, तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट मराठा का अगर उसका कुंबी का नहीं मिला, उसकी कोतवाल बुक में या कोई उसके दादा परदादा के इसमें अगर नहीं मिला, उसको नहीं मिलने वाला है। तो ये बात है, ये सरकार ने गोलमाल तरीके से कर दिया। इसके रिजल्ट जब लोग प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे सर्टिफिकेट निकालने की, उस वक्त दिखेंगे। इसके पहले भी जब ये एकनाथ शिंदे थे, उस वक्त भी मैंने बोला था कि ये मराठों के साथ अन्याय किया है, कुछ फायदा हुआ नहीं। जरांगे पाटिल अब निकले, उनको ध्यान में आ गया। अभी मैं आप बोलता हूँ 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद दिखेगा ये जीआर निकला है, उससे कुछ जनता को फायदा नहीं हो रहा है, तो ये फिर से आंदोलन शुरू हो जाएगा। और आपको एक बात बोलता हूँ सर, कि आपने इसके पहले भी बोला था कि मराठा समाज सोशली बैकवर्ड है क्या? आपने बोला था कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकता है मराठा। अब मैं आपको बताता हूं कि मराठा किस वर्ण में आता है, मराठा को सोशली क्या स्टेटस है। आप बोलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्याभिषेक करने से मना किया था महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने, किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि बोले आप क्षत्रिय नहीं है। 2 बार। अब इस 4 वर्ण है सर 4 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो शिवाजी महाराज तो ब्राह्मण नहीं थे। अच्छा, तो क्षत्रिय तो मानने से मना किया जाता है इन्होंने, महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने कि आप क्षत्रिय नहीं है इसलिए हम आपका राज्याभिषेक नहीं करेंगे। और वैश्य भी नहीं थे। तो शिवाजी महाराज ना क्षत्रिय थे ब्राह्मणों के हिसाब से, ना शिवाजी महाराज ब्राह्मण थे, ना शिवाजी महाराज वैश्य थे। फिर शिवाजी महाराज किस जाति के थे? आप ही बोलिए, कौन सा वर्ण वैसा है? शिवाजी महाराज शूद्र वर्ण के थे। ये ब्राह्मणों के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से, चातुर्वर्ण के हिसाब से इन्होंने तय किया कि शिवाजी महाराज ना ब्राह्मण है,
ना क्षत्रिय है ना वैश्य है, तो शिवाजी महाराज शूद्र है। तो शिवाजी महाराज किस समाज से थे? मराठा समाज से थे। तो मराठा समाज को उस वक्त भी शूद्र माना गया था। उसके बाद उनके वंशज शाहू महाराज, उनके साथ भी वेदोक्त मंत्र नहीं कहे उनके पंडित ने, उनके जहाँ नौकरी करता था उनके दरबार में, उन्होंने वेदोक्त मंत्र नहीं कहे, पुराणोक्त मंत्र कहे। तो उनके दोस्त ने बोला भागवत ने कि भाई ये तो गलत मंत्र पढ़ रहा है, आपके लिए वेदोक्त मंत्र नहीं पढ़ रहे। तो फिर शाहू महाराज ने पूछा कि ये क्या रहता है? तो पंडित जी ने बोले कि ये जो वेदोक्त मंत्र है शूद्रों के लिए रहते हैं और पुराणोक्त मंत्र क्षत्रियों के लिए थे। आप क्षत्रिय नहीं, इसलिए आपको हम नहीं पढ़ेंगे। तो उस वक्त भी शूद्र थे। और अभी वही शाहू महाराज के वंशज संभाजी राजे, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा पे गए थे, राष्ट्रपति नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में थे, उनकी 6-8 महीने पहले उनकी पत्नी नासिक में आई थी, उनको भी वेदोक्त मंत्र नहीं कहे गए, उनका लिए भी पुराणोक्त मंत्रों का इस्तेमाल किया गया। गागा भट्ट ने तो ऐसा नहीं किया सर। अभी भी शिवाजी महाराज से लेके शाहू महाराज जो है संभाजी राजे, यहाँ तक आज समाज जो मराठा समाज है वो शूद्र वर्ण का है सर। लेकिन गागा भट्ट जो है उन्होंने तो ऐसा नहीं माना ना सर। नहीं, गागा भट्ट ने गागा सारस्वत ब्राह्मण लिए थे वो सर, तो सारस्वत और ब्राह्मण गागा थे। भट्ट ने उनको बोला था कि आप सिसोदिया वंश से है, उनकी कुंडली निकालिए सिसोदिया वंश की, क्या सिसोदिया वंश से ऐसा निकाल के और 32 लाख स्वर्ण मुद्रा लेके उनका स्वराज्याभिषेक किया था। और बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है कि शिवाजी महाराज को सिसोदिया वंश का कहना शिवाजी महाराज का अपमान है, क्योंकि इनका जो सिसोदिया वंश जो है ये तो मुसलमानों के साथ इनके बेटी व्यवहार हुआ था, इन्होंने रिश्तेदारी की थी मुसलमानों के साथ। तो अभी आपको क्या लग रहा है सर? और मराठा समाज ने ऐसा मुसलमानों के साथ बेटी व्यवहार नहीं किया था सर। सर तो आपको क्या लग रहा है सर, जहां तक कि मराठा आरक्षण का प्रश्न है, क्या ये जीआर स्टैंड करेगा कोर्ट में? नहीं, जीआर स्टैंड हो सकता है कोर्ट में, क्योंकि जीआर बोगस है। ये जीआर जो है ना, जीआर मराठों के फेवर में है नहीं जी। अभी तो ये जरांगे पाटिल ने इसलिए मान्य कर लिए कि उनका जो है, उनको मुंबई में माहौल खराब नहीं करना था, कोर्ट के आदेश थे और बहुत अफरा तफरी का माहौल होता था। उन्होंने वक्त की नजाकत को पहचानते हुए दो पैर पीछे आ गए कि ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, लेट मी गो टू डॉक्टर मलिक एंड देन फाइनली आई विल गो टू द्विवेदी साहब। डॉक्टर मलिक, मतलब के कोई अच्छा काम भी हो, जैसे सरकार ने जीआर निकाल करके पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया और जीआर निकाल करके ये बताया कि भैया हमने तुम्हारी एक एक मांग को मान लिया है, और जरंगे पाटिल साहब खुद बोलते हैं कि मेरी एक एक मांग को मान लिया है। और छोड़िए, अगर नहीं बोलेंगे तो जनता नहीं मानेगी ना, उनको जनता को समझाना जरूरी था। सर आपका तो ये है, मान लिए सर बीजेपी सरकार कुछ भी कर ले आप कभी खुश नहीं होगे। मैं तो डॉक्टर मलिक, आप लोग कुछ भी कर लो, मतलब 1.5 किलो खून अपना दे दो, 1.5 लीटर खून, वो कहेंगे इस खून में गड़बड़ है। ये खून चूसने वाले लोग हैं सर, खून चूसने वाले, खून देने वाले लोग नहीं। ये इन्होंने सिर्फ एक ग्रुप का किया है, हमें एबी का नहीं था। सर आप बताएं डॉक्टर मलिक, बोलिए जी। देखिए, जहां तक विषय मनोज जारंगे पाटिल जी का और जहां तक अन्य विषयों का सवाल है और जिस तरीके से वो अभी बोल रहे थे, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे को हर मुद्दे पे, हर विषय में धरातल पे उतारती हुई स्पष्ट नजर आ रही है। और महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और मराठी अस्मिता की जहां तक बात है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो महाराष्ट्र प्रदेश की अस्मिता की रक्षा, अस्मिता की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से दिन रात जुटी रहती है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो महाराष्ट्र प्रदेश का विकास किस प्रकार से हो, महाराष्ट्र प्रदेश किस प्रकार से एक तरीके से डेवलप हो, इसकी हम चिंता करते हैं। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोड सेक्टर हो, या किसी प्रकार के कोई भी सेक्टर की बात कर ली जाए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। महाराष्ट्र प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार के नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, अजीत पवार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से प्रत्येक महाराष्ट्र प्रदेश के वासी का निरंतर चौमुखी विकास जो हो रहा था वो होता रहेगा, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कितने भी लोग आए जाए, कोई भी ये शिवसेना यूबीटी अड़ंगा डालने का प्रयास करे, परिवारवादी लोग अड़ंगा डालने का प्रयास करें, करप्ट लोग अड़ंगा डालने का प्रयास करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी एक वाइस प्रेसिडेंट की रहेगी, बिल्कुल स्पष्ट। डॉक्टर दोने साहब, आप पिछड़े और आदिवासी के बात करते हो, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस 9 तारीख को होने वाला है।
आपका कैंडिडेट है सुदर्शन रेड्डी जी, जो द्विवेदी जी के पार्टी ने भी एंडोर्स कर दिया कि हम सुदर्शन रेड्डी जी के साथ हैं। अब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने आदिवासी के खिलाफ काम किया। सलवा जुड़म आदिवासी का एक कवच था जिससे वो नक्सलवादी से लड़ रहा था, जंग छेड़ रहा था, और उसी जस्टिस रेड्डी ने उस कवच को हटा दिया, सलवा जुड़म को निकाल दिया और आदिवासी को इनके मुंह में ढकेल दिया। तो बीजेपी का कहना आपका आदिवासी प्रेम कहां चला गया, और आप उसी को सपोर्ट कर रहे हो जो आदिवासी के खिलाफ काम किए। क्या बोलेंगे धोले साहब? नहीं सर, वो तो जजमेंट था, जब उनके पास जो फैक्ट्स फिगर आई होगी उस पे जजमेंट दिया होगा उन्होंने। तो एंटी आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं, का ऐसा प्रोटेक्शन नहीं के लिए होता है था। सर। चेयर पे बैठने के बाद जो उनके सामने तथ्य आए हैं उस हिसाब से उन्होंने जजमेंट दिया होगा। इसी तो ये तो ऐसा बोलेंगे कि ये जो राम मंदिर का जो दिया है तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे राम मंदिर के फेवर में दिया है? ऐसा नहीं रहता है। उनके सामने जो तथ्य आए वो हिसाब से उन्होंने निर्णय दिया होगा। Right, so तो let me बात go अलग across है, to कोई Dwivedi sir. वो चेयर पे बैठा है, उसके सामने जो आए बात द्विवेदी जी। पूरा प्रूफ आए वो हिसाब से निर्णय दिया हो। इस बात को उठाना है, पूरी न्याय प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाना है। दुरुस्त बात। द्विवेदी जी आप आरएसएस के साथ हो, आपको सावरकर से आप अलग हो नहीं सकते। आपका यही प्रॉब्लम है कि बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है राधाकृष्णन जी, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बट आप सपोर्ट कर रहे हैं सुदर्शन रेड्डी जी को। क्या ये कंफ्यूजन नहीं है पूरे रैंक एंड फाइल शिवसेना की? देखिए, हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने भी राष्ट्रपति चुनाव में विधवा पाटिल जी का समर्थन किया था, और भी लोग समर्थन किया था। प्रणब मुखर्जी का भी समर्थन किया था। प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। Correct. तो देखिए, पार्टी का अपना एक वो बेस है, पार्टी का निर्णय होता है मेन। वो तो माननीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्या निर्णय ले रही है, हमें किसको समर्थन देना हो, किसको नहीं देना। राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये संवैधानिक पद है, सर्वोच्च पद है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया, वो हम लोगों को बड़ा दुखद लगा। इस्तीफा ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई भी कारण हो। आवाज उनका जो संवैधानिक पद है, इन पे सम्मान निश्चित रूप से रहना चाहिए, चाहे किसी पार्टी का भी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, अभी आपने 3 नाम लिए, बाला साहब ठाकरे जी का, वीर सावरकर जी का, सबका नाम आपने लिया। भारत रत्न कब तक मिलेगा सर? भारत रत्न की बातें नहीं करते हमारे बीजेपी प्रवक्ता, वो तो पता नहीं क्या अपनी ज्ञान हमको देने लगते हैं। पारिवारिक पार्टी, अरे पारिवारिक पार्टी 30 साल आपके संग रही, तब आपको याद नहीं आया था क्या जेजेपी साहब ने गठबंधन के जिनके विरुद्ध आप चुनाव लड़े थे? तो ऐसी कौन सी आपकी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था जो आपने जेजेपी की संग सरकार बना दी? और नीतीश कुमार जी उनका थे, वो रोज आपकी पार्टी संगठन छोड़ देते थे और रोज आपके साथ आ जाते थे। पीडीपी की बात आप कर लीजिए, पीडीपी से आपने गठबंधन किया, मुझे वार्ताओं दे रहे थे कि साहब मैंने तो बड़ा सही गठबंधन किया। तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद है। रामविलास पासवान जी से आपने गठबंधन किया, पहले आपने चाचा जी के साथ किया, 5 उनको मंत्री बनाया चाचा जी को, इसका चाचा जी बेकार हो गए, अब उनके बेटे को मंत्री बना दिया आपने, अब उनके संग लड़ने लगे। तो आपकी कौन सी नीतियां हैं, आपकी क्या आपकी कौन सी नीतियां हैं, क्या है? मुंह पे कुछ है, बगल में कुछ है, मुंह पे कुछ है, बगल में कुछ है। आपकी नीतियां देशवासियों को समझी नहीं आ रही देशवासियों को। ठीक है, आप जीत रहे हैं, इसका घमंड मत करिए अमरेश जी, प्रवक्ता जी, इसका घमंड मत करिए। नहीं, कहाँ जीत रहे सर? ये हार रहे, धीरे धीरे हार की तरफ जा रहे हैं। तो उनकी कहा सरकार फुल मेजोरिटी में कहा है, 240 पे अटक गई। 400 सीटें मांगी थी। धीरे धीरे लोगों को ऐसा लग रहा था कि मोदी जी के भी हारेंगे नहीं, लेकिन 2024 के इलेक्शन में बता दिया कि मोदी हार सकते हैं। मैं उसी कह रहा हूँ, आज इस महाराष्ट्र को लेके आप गर्व महसूस करते हैं कि साहब मैंने ऐतिहासिक विजय विधानसभा में जीती, तो लोकसभा में क्या हुआ? विधानसभा में 1 सीट थी लोकसभा की, वो भी आप हार गए, और लोकसभा सीट आपको लोकसभा में आप हार गए। क्या मतलब महाराष्ट्र की जनता जो है वो मोदी जी को नहीं चाहती है, उत्तर प्रदेश जनता मोदी जी को नहीं चाहती है। तो ये बात है, इस तरह की बात करना कि उनकी नीतियां बहुत सही चल रही हैं, अब ऐसा भारत बन रहा है। देखिए, जो प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी बने, चाहे मनमोहन सिंह बने, मनमोहन सिंह की नीतियों को शायद कांग्रेस ने उजागर नहीं किया। अगर किया होता तो शायद आज दिन कुछ दूसरे होते। जो मनमोहन सिंह ने काम किया, उस देश में क्या हालत थी देश की,
तो वो आप नहीं कर पाए। दूसरी बात है, आप सोनिया गांधी को लेके, राजीव गांधी को लेके, इंदिरा गांधी को लेके जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करती बीजेपी प्रवक्ता या माननीय प्रधानमंत्री जी, वो शायद इस देश को शोभा नहीं देता है। आप भी कल पूर्व बनेंगे, ऐसा नहीं है कि माननीय मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। आप पूर्व प्रधानमंत्री जिस तरह से ना मनमोहन सिंह को आपने क्या कह दिया कि बाथरूम में क्या, तमाम ऐसी बातें कही, मैं कहना नहीं चाहता हूँ कैमरे पे, तमाम ऐसी बातें आपने कही और उस देश के लिए कहा 2014 से पहले इस देश में पैदा होना गुनाह था। इस तरह की बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको राजनीति करनी है, विशुद्ध राजनीति करिए, पार्टियां मत तोड़िए। जैसे शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, विधायकों को खरीद फरोख्त करके अपने पास लाके सरकार बना लेते हैं। तो ये प्रजातंत्र लोकतंत्र की नहीं है। कुछ भी करो, मोदी जी देश से, जेल से सरकार चलने नहीं देगा। अगर आप जेल से सम्राट को मानते हैं, जेल से सरकार चलने ही नहीं देगा। ये भी बिल मानते हैं, ये बिल भी क्लियर होगा। मोदी जी बोले, मोदी जी उनको आप दीजिए, भारत रत्न देने का काम आपका है, माननीय गृह मंत्री का है, माननीय प्रधानमंत्री का है। भारत रत्न देने में क्यों टाल मटोल कर रहे हैं? जेल से चलने नहीं देगा, कुछ भी करो। 11 साल से वीर सावरकर, हिंदू बाला साहब ठाकरे, लेकिन भारत देने समय नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे? ये कारण बताइए मुझको आज। क्रिमिनल नेता बिल, प्रदीप जी बैठे, बजाज जी बैठे, इस डिबेट में कारण बताइए कब तक मिलेगा? दोनों लोग, तीनों लोगों को भारत रत्न की उपाधि कब तक मिलेगी? आप मुझे बताइए। अभी जेल से चलने नहीं देगा। द्विवेदी जी, मोदी जी ने ऐलान कर दिया, अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया, जेल से सरकारें चलने नहीं देंगे। जो पहले हो गया था हो गया था, अब बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप करें समर्थन या नहीं करेंगे? देखिए सर, ऐसा है ना, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, आईटी आपकी, सब कुछ आपका है। अब आप सत्येंद्र जैन को आपने बंद रखा, इसका सीबीआई ने क्या कहा कि साहब मेरे पास कोई सबूत नहीं है। एनडीटीवी के जो मालिक थे उनको 7 रुपए का मुकदमा चला। बाद में क्या हुआ कि साहब सीबीआई कह रही मेरे पास कोई वो नहीं है। द्विवेदी जी पूरी बात बताइए ना। मंत्री छूटे, संजय राउत छूटे, संजय द्विवेदी जी, माफी क्षमा चाहता हूं। आदरणीय सम्मानीय सत्येंद्र जैन जी, जो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे दिल्ली के, उनके खिलाफ 5 केस है। ही हैज गॉट 5 केसेस अगेंस्ट हिम, जिसमें से एक केस जो है वो विड्रॉ हो गया है, क्योंकि सीबीआई ने कहा कि इस केस में हमारे पास सबूत नहीं है। बाकी 4 केस चल रहे हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे डॉक्टर मालिक, बोलिए सर प्लीज। जी देखिए, जहां तक विषय ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन, ये सारा एक साथ जोड़ने का काम करता है। ईडी सीबीआई स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ईडी सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। और जहां तक विषय है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, स्वतंत्र संस्था है। और एक और नई चीज है, 2014 से पहले ईवीएम सही था, फिर 2014 में जैसे ही हमारी सरकार आई, इनके अनुसार ईवीएम तत्काल खराब हो गया। और उसके बाद ईवीएम खराब हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, एक अलग मैटर हुआ। लेकिन उसके बाद फिर जब कुछ मुद्दा नहीं था तो एसआईआर के माध्यम से इन्होंने वोट चोरी का हल्ला किया। और इस अभी भी कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन्हें जवाब दे देगी जनता की अदालत में जब ये जाएंगे। और साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की तो सरकार 60 साल तक रही, आकाश से पाताल तक लंबे चौड़े घोटालों की सूची है। उस विषय पर जाना मैं समझता हूँ सही नहीं है, लंबा समय लगेगा। एक तरीके से बोफोर्स घोटाले से लेकर नेशनल हेराल्ड स्कैम है, उसके बाद तमाम सारे घोटाले हुए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है शिवसेना यूबीटी का, और जहां तक इंडी अलायंस का विषय है, ये इंडी अलायंस किस आधार पे बना है मैं स्पष्ट कर देता हूं, केवल 2 लाइन। ये जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और उसके साथ साथ कास्टिज्म और क्षेत्रवाद के आधार पे पूरा इंडी अलायंस बना है। और मैं परिवारवाद से प्रारंभ करता हूं। बिल्कुल संजय जी, आप सबसे पहले, मैं यकीन कर रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, आप सबसे पहले प्रसन्न होंगे। मैं बता रहा हूं ना, आप विश्वास करिए, मैं केवल 2 लाइनों में स्पष्ट कर रहा हूं, आप प्रसन्न होंगे और मेरी बात से एग्री भी करेंगे। देखिए, जहां तक विषय उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इंडी अलायंस को जब पढ़ने कोई चलेगा तो किस रूप में चलेगा? जम्मू कश्मीर से प्रारंभ करिए, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रारंभ करिए, किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी में मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, और बिहार के इलेक्शन है तो बिहार में आरजेडी, पूरा लालू परिवार चला रहा, यही शीर्ष नेतृत्व है। बंगाल में टीएमसी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उधर शिवसेना यूबीटी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी,
और अगर एनसीपी शरद पवार की बात की जाए तो शरद पवार जी, सुप्रिया सुले जी, और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी इज इक्वल्स टू गांधी परिवार, साथ साथ आम आदमी पार्टी इज इक्वल्स टू अरविंद केजरीवाल। हालांकि ये कहते हैं कि भाई वो अलग हो गए क्योंकि इनका आइडियोलॉजी से लेना देना नहीं है, कभी भी अंदर ले लेते हैं, फिर अगर फायदा ना हो अलग कर देते हैं। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टीज का क्या हाल है वो सबको मालूम है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है ये परिवारवादी संगठनों, मैं समझता हूं सबको स्पष्ट रूप से मालूम है, समाजवादी पार्टी इज इक्वल्स टू सैफई वाला परिवार, उत्तर प्रदेश का परिवार, यादव परिवार, अखिलेश जी का परिवार, एक परिवार। तो एक परिवार के आधार पर चलने वाले सभी राजनीतिक दल जो राजनीतिक रूप से राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो चले थे, ये मोदी जी को हटाने के लिए ना ये गरीबी हटाना चाहते हैं, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, ना किसी प्रकार से शोषण के विरुद्ध ये आवाज उठाएंगे। ये अगर उठाएंगे तो मोदी जी के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। ये मोदी जी को हटाने के लिए सारे परिवारवादी राजनीतिक दल, सारे परिवार एक मंच पे इकट्ठा हुए, जिसका नाम दिया गया इंडी अलायंस। और मैं समझता हूँ, पूरा मुझे यकीन है आदरणीय संजय द्विवेदी जी स्पष्ट रूप से इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि वो हमेशा शिवसेना प्रवक्ता होने के बावजूद भी न्यूट्रल रहने का प्रयास करते हैं। जी, लेकिन एक चीज है, मलिक साहब एक चीज है, डोने साहब के पास जाने के पहले जो आपने अभी ये बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण दिया ना, ये सबसे पहले मैंने 1982 में सुना था सर। इंदिरा जी एग्जैक्टली यही बोला करती थी, जब सारी ऑपोजिशन पार्टी इकट्ठी हो जाया करती थी, उनका भी एक्सप्लेनेशन यही होता था कि सब लोग सिर्फ इंदिरा को हटाने के लिए इकट्ठे आए। एनीवे इट्स पॉलिटिक्स डजंट मैटर। बट जिनको आप सुना रहे थे ना, संजय द्विवेदी जी, जिनको आप सुना रहे थे, मैं आपको एक भविष्यवाणी करता हूं, इस साल के पूरे होने के पहले संजय द्विवेदी जी वापस आपके साथ होंगे, यानी उद्धव ठाकरे जी वापस होंगे एनडीए में, ये भी बता दूं आपको। डॉक्टर ढोने बोलिए सर। तो ऐसा है सर, इन्होंने जो बोला अभी ईडी का जो मामला है जी, ये बोलते कि अपने इससे चलते, नियम से चलते, पिछले 5 साल में मोदी जी के राज में 193 लोगों के राजकीय नेताओं के खिलाफ इसमें ईडी ने गुन्हे दाखिल किए, 193, और उसमें सिर्फ 2 लोगों का सजा हुई। ये जानकारी किसने दी है? ये राज्यसभा में मोदी सरकार के अर्थ राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है कि 193 लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल किए, उसमें 2 लोगों के खिलाफ 2 लोगों को सजा हुई, यानी 191 लोगों को इन्होंने जानबूझ से बेगुनाह लोगों को फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ईडी ने किया है। ये तो पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कबूल किया। सर प्लीज बी फेयर। वो 2 लोग जिनका कन्विक्शन हो गया है, वो फाइनली अपील्स प्रोसेस खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के दैट इज अपहेल्ड दैट कन्विक्शन। 2 लोगों को जो कन्विक्शन हुआ है, बाकी सबके खिलाफ केस चल रहा है सर। I agree with you. The ED has a lot to answer for. Supreme Court ने खुद बोला है. In fact, the Justice गवाई साहब himself has said, you don't be a political pawn. ऐसा Justice गवाई साहब ने बोला है, Chief Justice of India ने ED को। ऐसी बात नहीं है जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। ED has to clean up its act. After all, Enforcement Directorate काय के लिए बनाया गया था? डॉक्टर ढोने, डॉक्टर अविरल मलिक, संजय द्विवेदी जी, इसलिए बनाया गया था कि जो नारकोटिक्स है, स्मगलिंग है नारकोटिक्स की, ड्रग्स, और ड्रग्स से जो पैसा उत्पन्न होता है, उससे जो आतंकवाद को फाइनेंस करते हैं, उसके खिलाफ हुआ था। वो शायद भूल गया ईडी। आज की तारीख में ईडी जो है हमारे मुंबई में पान वाले, दूध वाले, सब्जी वाले, हर एक के खिलाफ ईडी चल रहा है सर, which I think is rather sad. दोनों साहब, I want to ask you, जैसे बजाज साहब ने कहा, गवाई साहब चीफ जस्टिस ने 2 बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया ऑन द कोर्ट। एक तो ईडी को फटकारा, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आता हूं और महाराष्ट्र में आपने क्या हंगामा मचा के रखा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पॉलिटिकल टूल बनाया। गवाई साहब ने इन द कोर्ट सामने बोल दिया, मुझे मालूम है और मुझे मेरा मुंह मत खुलवाइए, ये बोल दिया एक ईडी के बारे में। और दूसरा, गवर्नर, जो आपने हमेशा मुद्दा उठाया कि गवर्नर बिल को रोकते हैं, तो गवाई साहब ने यह भी पूछा कि जब गवर्नर अनडेमोक्रेटिक तरीके से बिल को रोकते, क्या सुप्रीम कोर्ट को चुप रहना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं रह सकता। ये गवाई साहब का ऑब्जर्वेशन कोर्ट में, क्या ये ऑब्जर्वेशन ऑर्डर में बदलेगा? कैसे देखते हो आप दोनों साहब? हम तो उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर में बदलना चाहिए, लेकिन अब ये इनके पास तो ऐसा है कि ये जस्टिस लोगों पे भी दबाव डालते हैं। लोया का भी मर्डर कर दिया नागपुर में,
बहुत लोग डरे हुए हैं सर, जज लोग भी इंसान हैं सर ऐसा मत जज बोलो लोग सर। भी इंसान हैं। सर मुझे क्यों फंसा रहे हो सर? बोलिए। अरे सर मुझको भी फंसा रहे हो साथ में, आप मुझको और प्रदीप भाई को भी फंसा रहे हो, क्या कर रहे हो? और साथ में अविरल मलिक साहब बैठे हैं, संजय द्विवेदी बैठे हैं। सर ऑल 5 of us will be held liable because of this statement of yours. You don't know what is the matter with you. Please don't say this sir. Dr. Malik आप कुछ बोल रहे थे। बोलने वाले थे, बोलिए। मर्डर करा दिया। अरे क्या कर रहे हो यार? बोलिए डॉक्टर मलिक। डॉक्टर मलिक बोलिए सर प्लीज। जी नहीं, देखिए जिस तरीके की बयानबाजी ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी वाली बात है। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर सर बात सुप्रीम करनी कोर्ट चाहिए। के जज आपके पार्टी में आके राज्यसभा में चले जाते हैं, राज्यसभा में गए सर, जज पे क्या विश्वास रखेंगे अब दुनिया? इनके पार्टी से जो इनके फेवर में जजमेंट देते हैं, बाद में राज्यसभा में चले जाते हैं इनके पार्टी के माध्यम से। ये क्या दुनिया देख रही है? जस्टिस लोया साहब के विषय पर जो इन्होंने कहा, ये बहुत ही दुखद है। और उसके साथ साथ किसी के देहांत पर, किसी के निधन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ इस तरीके से कुछ भी बोल देना बिल्कुल किसी को उचित नहीं है। नहीं क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत में? बड़ी अच्छी बात करते हैं भाई आप। सुशांत सिंह राजपूत में क्या हुआ था? आप बिहार चले गए थे, वहाँ केस दर्ज कराया था, सीबीआई को आपने दे दिया था जब उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट थी। क्या बात करते हैं मलिक जी? और द्विवेदी जी आप क्या बात करते हैं, ये आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है। सर मुझे आगे दीजिए, मुझे जरा दूसरे इस पे जाना है। Right, thank you gentlemen, thank you very much, great pleasure talking to all of you, but I really hope अविरल मलिक साहब, सरदार भगत सिंह को तो आप भारत रत्न दिलवा दीजिए सर किसी भी तरीके से। कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई, एंड वी नो व्हाई द कांग्रेस डिडंट डू इट, आप तो कर सकते हैं सर। शहीद आजम भगत सिंह को, वो मैं मानता हूं उनको भारत रत्न की आवश्यकता नहीं है, वो भारत रत्न से बहुत ऊपर हैं। आप उनको दें या ना दें, वो भारत के रत्न हैं और रत्न रहेंगे। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं सर कि भगत सिंह को, सरदार भगत सिंह को आप जरूर देंगे सर। वो वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे का जहां तक सवाल है, वो पॉलिटिकल सवाल है, वो सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन सरदार भगत सिंह हर एक के चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जब भी बात करें, हम लोग तो पिटीशन यहाँ से भेज ही रहे हैं, पता नहीं कितनी ईमेल भेज चुके हैं और भी भेजेंगे, कि इनको, ये पीली पगड़ी वाले को सर प्लीज। और ये भी आपको बता दें, नाउ पंजाब हैज बीन डिक्लेयर्ड अ डिजास्टर जोन, सो ऑल हेल्प फ्रॉम द सेंटर इज बीइंग गिवन नाउ टू पंजाब। अब एयरफोर्स को भी लगा दिया गया है, अपने आर्मी को भी लगा दिया गया है, BSF भी लग गई है वहाँ पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लग गई हैं। आई होप द पीपल ऑफ पंजाब फाइंड रिलीफ। ये फ्लड जो है सर, 37 साल के बाद ऐसे बुरे फ्लड्स आए हैं पंजाब में, आज तक कभी ऐसे नहीं आए। मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब के लोग सब ठीक ठाक रहेंगे। एंड बाय द वे, जाने के पहले हैप्पी ओणम टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी ओणम। आज ओणम है, हैप्पी ओणम टू एवरीबॉडी। और कल हमारी आनंद चतुर्दशी है, जैसा मैंने कहा कि आप दोनों को निमंत्रण है, आप कृपा करके अगले बरस जब गणपति यहाँ पर आए, आप प्लीज आए मुंबई हमारे गेस्ट बन करके। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। No, I really can't figure out why is it that they can't give Shahid Bhagat Singh a Bharat Ratna? What could be the Very reason? relevant questions. Yes. Could it be because Mahatma Gandhi opposed his method? Could it be because Gandhiji said that he's against violence? Could it be because of that? What could it be? I don't know. Is it that because the same bureaucrats are still ruling and they don't want Bharat Ratna to be given to this young man? I don't know. No, but all the three topics that you raised, the names, deserves. Why not Savarkar? Why not? Why not Veer Savarkar? Why not Bala Saheb Thackeray? आप दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे आप? मतलब And Savarkar's task was a bigger one. He was fighting for the whole country, and he said, "I'm going to drive away the British." And his entire childhood, young से लेके college से लेके जिस Sir, he is the only person Yes. to have been sentenced to 2 consecutive life terms. life terms. आज तक कभी किसी को नहीं मिला ये कि 2 बार कि एक लाइफ टर्म खत्म होगी, उसके बाद दूसरी शुरू हो जाएगी। मतलब मरणोपरांत भी आप जेल में रहेंगे, कहने का मतलब ये हुआ। और उनके जो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस देखिए, शिप से बाहर कूदता है, जी दुरुस्त बात। look, all for what? I mean, he could have just remained a normal person and led normal But life. even though Veer Savarkar perhaps may be a divisive person, Shahid Bhagat Singh is not. भगत सिंह तो सारी दुनिया प्यार करती है भाई, एटलीस्ट भगत सिंह को तो दीजिए। What could prevent it? God only knows. In any event, that's just about it. कल आनंद चतुर्दशी है, आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। आज ओणम की भी बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद प्रदीप जी, वो क्या है, वो पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद नवरात्रि है। ये फेस्टिवल का सीजन है सर, बिल्कुल। उसका आगमन होता है दही हांडी से, जन्माष्टमी से, और चलता है फिर ये न्यू ईयर तक।
न्यू ईयर्स ईव तक चलता है और उसके बाद जाकर के होली पे जाके खत्म होता है। Exactly. तो इस विषय में कई बार हम लोग बात कर चुके हैं that actually Mumbai and the rest of Maharashtra can do something like a religious carnival here बिल्कुल। in Mumbai and You've been Maharashtra. talking about this since long time. It's a I've been talking about fantastic this for the idea. last 20 years. Yes, 20 yes, 20 yes. साल से 20-25 साल से मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप टूरिस्ट को आप यहाँ पर इनवाइट करें, turn Mumbai into a carnival. People go to the Rio Carnival for sex and glamour. They can come over here for religion, spirituality, and enlightenment. We could get people from all over the world. And really and truly speaking, even Maharashtra could contribute over $2 to $3 trillion just on the basis of this carnival. If they were just to get their act together. Spiritual tourism is a big business. Spirituality is a big business. That's And right. You combine both together, spiritual tourism, fantastic. सबसे बड़ी बात सर। Mumbai has got the infrastructure, Pune has got the infrastructure, whole Maharashtra has got the infrastructure to take care दुरुस्त of it. बात, दुरुस्त बात। I hope Commercial. somebody listens. I hope somebody listens. That's just about it. And before we go, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज करें। Please do subscribe to the channel. वो घंटी लगे प्रदीप जी। Bilkul, the fastest growing channel of the nation. The The- fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest growing channel of the nation, Nation Now. And do send in your comments. And we'll of course be back with you. तब तक लिए आप देखते रहें नेशन नाउ। प्लीज डू कीप वाचिंग नेशन नाउ। हमको दीजिए इजाजत। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.